Ladies and gentlemen, welcome back to the channel, welcome back to Viraj Reviews and आज हम आए हैं in Manali, this beautiful place with Lexus. क्योंकि Lexus का एक छोटा सा हम ट्रिप लगाने वाले हैं, not exactly छोटा सा, because we are actually going from Manali to Delhi in a single day in the Lexus cars. यानी कि around 11 से 12 घंटे का रास्ता है and that too in पहाड़. and आप लोग जानते हैं मनाली की रोड्स right now are not exactly in the best condition because of what happened in the previous couple of months. तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये देखना है कि Lexus की कार्स, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं, Lexus की SUV रेंज RX, NX एंड LX, यानी कि Lexus की जितनी भी SUVs आती हैं वो सारी हमारे पास हैं इस ट्रिप पर. एंड वी हैव टू सी हाउ दे परफॉर्म ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप, जहाँ पर रोड ख़राब भी है, पहाड़ी रास्ता भी है एंड इन सम प्लेसेस जहाँ पर रोड ठीक भी है. तो लॉन्ग रोड ट्रिप ये कार्स कैसे परफॉर्म करती हैं, क्या थकान होती है या नहीं. बिकॉज अगर मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दूँ, आई लव टू ड्राइव बट आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस ड्राइविंग वेरी लॉन्ग. यानी कि आज तक मैक्सिमम अगर मैंने गाड़ी चलाई है दैट इज़ लाइक 6-7 आवर्स और 8 आवर्स इन अ डे. 12 घंटे गाड़ी चलाना मेरे लिए पहली बार होगा एंड दैट टू वे ड्राइविंग Lexus कार्स. तो मेरा क्या रिएक्शन रहता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है, मेरे को कितनी फटीग होती है या नहीं होती, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप एंड आई होप यू गाइज आर टू. बट विद दैट सेड, लेट्स फाइनली स्टार्ट आवर ट्रिप. वी आर इन मनाली राइट नाउ एंड फ्रॉम हियर वी आर हेडेड ऑफ फर्स्ट स्टॉप टू मंडी. सो गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ, दीज आर द कार्स दैट वी हैव वन Isuzu विच इज़ लाइक द सेफ्टी कार एंड स्टफ, जिसमें सारा सामान है फॉर द ट्रिप. वी हैव 3 RX 450s 1, 2 and 3. वी हैव द LX 500D and then we have an RX 350 and then we have an NX 350 way on the top over there. So these are the total cars that we have. And if you see, these cars are all like सारी गंदी हुई हैं. And the reason for that is actually that Lexus was on an expedition from Leh. So I joined this trip in Manali, but these cars have come all the way from Leh. So Leh to Manali की भी एक leg कल हो चुकी है. This is the second leg from Manali to Delhi. Sadly I was not part of the Leh expedition. And the reason was that मैं कभी कभी गया नहीं था पहले. So अगर मैं जाता, it would have been my first time. And फ्लाइट में इफ़ यू गो फ्रॉम चंडीगढ़ टू ले एकदम से या फिर दिल्ली टू ले, वो प्रेशर डिफरेंस एंड ऑक्सीजन की कमी की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है. लाइक फॉर लाइक 90% ऑफ द पीपल तबीयत ख़राब हो जाती है. एंड देन ऑब्वियसली इफ़ आई वुड हैव डन दैट, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, आई वुड हैव डेफिनेटली नॉट बीन एबल टू ड्राइव ले से मनाली तक. सो वो वी डिड नॉट वांट टू टेक अ चांस ऑफ दैट. सो द प्लान वाज दैट कल मैं मनाली तक आ गया था and then from Manali to Delhi we are going, and then from Delhi to Chandigarh is the second trip. So the RX 450H, this one is the car that I am driving. This is the previous model by the way. तो अगर आप देखो इसका इंटीरियर वगैरह is a little different compared to the new ones, but nevertheless it's still a good interior. अब Lexus की एक चीज़ that I've always seen is that they don't create like very flashy interiors. But they are very sophisticated. मतलब these are the interiors जो कभी भी out of style नहीं जाने वाले. They are like timeless interiors. So I really like that about this car. But yes, let's see how the driving experience of this car is. And so trip finally हो गया है commence. I am in the RX 450H as I had told you. ये पुरानी वाली जनरेशन है. So basically जो नई वाली RX 450H है that is leading. उसके just पीछे LX 500D है and then is my car and then we have the other cars behind me. We have these walkie talkies ताकि we can all stay up to date. हमारी लोकेशन पे किसी को कोई इशू होता है so we can stay in communications that way. So it's a fun trip. It's a good experience for me, first time experience like I said. So if I talk about my overall experience till now, so I'm very excited. Obviously अभी तो just शुरू हुई है so I can't really say anything, but yes, regarding the car itself, जैसे कि मैंने बताया, the timeless interior from Lexus really nice. Road अभी is not very bad, but again it's not perfect as well. But एक चीज गाड़ी में बैठते ही जो मैंने सबसे पहले नोटिस करी वो ये था, because as soon as I started, क्योंकि हम जहाँ पार्क हमने की हुई थी that was like a कच्चा रास्ता, obviously वहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं थी, मिट्टी पे ही गाड़ी एक तरह से पार्क थी. So the moment I started driving,
देयर वाज दिस ह्यूज खड्डा इन फ्रंट ऑफ मी, उसके ऊपर से मैं गाड़ी लेकर गया एंड आई barely felt it. So I know what I'm getting myself into now because this is a very comfortable car. Seats are good. I have the heated seats on right now. So we have heated seats, cooled seats for both passenger and driver in this car, जो कि अच्छी चीज है. And so it's going to be a very comfortable journey up until now. But again, just अभी तो शुरू ही हुआ है. Like I said, we have an 11 or 12 hour journey in front of us. That is, अगर ट्रैफिक हमें नहीं मिलता तो. So let's see how it goes. Very excited. So this is what I was talking about. मतलब उस रोड को जिसको हमने अभी क्रॉस किया है, that was such a bad road. लेकिन and when I was coming in the bus yesterday, मतलब I took a bus from Chandigarh to Manali yesterday, and during that time, like उस bus के अंदर we went crazy on that road, moving around here and there. But in this car, it was just like a piece of cake. Very comfortable. Obviously, you can feel those bumps. मतलब it's just natural that you would. But the way the car handled it, you don't feel uncomfortable in the car, which is just absolutely. अभी गाड़ी चलाते हुए कुछ 15-20 मिनट हो चुके हैं मुझे. एंड देयर इज वन थिंग दैट आई कैन डेफिनेटली टेल यू, जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी के बारे में. पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है, बिकॉज इट इज एन हाइब्रिड कार आफ्टर ऑल. तो वो ईवी से इंजन का जो ट्रांजिशन है, पहली बात तो वो बहुत स्मूथ है. यू डोंट फाइंड दैट आउट. दूसरी चीज, अभी आई फील वेरी कॉन्फिडेंट बिहाइंड द व्हील ऑफ दिस कार एज वेल, क्योंकि अब जैसे मनाली का रास्ता, लाइक आई सेड, अभी इट्स नॉट द बेस्ट, राइट. तो बीच में बहुत सारी डाइवर्जन है, बीच में ऐसी रोड है जहां पर रोड है ही नहीं, यू जस्ट हैव टू ऑफ रोड द कार ऑफ. तो जब हम उन पैचेस पे आते हैं, बिकॉज वी आर ड्राइविंग इन अ कॉन्वॉय, तो आगे वाली गाड़ियां आगे निकल जाती हैं एंड जो लोग अभी भी पैच पे रहते हैं वो थोड़े पीछे रह जाते हैं. तो लाइक कॉन्वॉय थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग दोस टाइम्स. बट देन कैचिंग अप इज वेरी इजी. मतलब इतने प्यार से ये गाड़ी हैंडल होती है, इतने प्यार से यू कैन मैन्यूवर दिस कार दैट यू डोंट फील दैट यू आर अंडर पावर्ड, यू डोंट फील दैट यू आर अंडर स्टीयरिंग, you don't feel any sort of discomfort in the car, or I would say कि you have the confidence कि even if you are pushing the car is still under your control, जो कि मेरे हिसाब से for driving is one very important thing to have. So in terms of that, RX 450 ने अभी तक मुझे बहुत अच्छे से impress किया है. So this is our first stop. आगे सिंगल रोड है because of the construction and repairing work. तो अभी एक साइड की रोड बिल्कुल बंद करी हुई है एंड वहाँ की रोड चल रही है. सो अराउंड 30 मिनट्स ईच साइड. 10 मिनट हो चुके हैं उसको खुले हुए, तो अराउंड वी हैव टू वेट फॉर अराउंड 20 मिनट्स ओवर हियर एंड देन वहाँ की रोड बंद हो जाएगी एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग. बट टिल देन वी डू हैव दिस ब्यूटिफुल सीन टू एन्जॉय. आई मीन mountainous regions are just so beautiful. But coming back to the cars experience have been absolutely amazing. Like the RX 450 till now has blown me away. Very comfortable car. कल जब मैं आ रहा था till Manali, I remember मंडी से लेकर मनाली तक का रास्ता was like never ending for me. वो ऐसा लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है. It was so uncomfortable. It was feeling so lengthy. But अब हम अपने होटल से अराउंड 8 o'clock निकले थे एंड इट्स द टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 10. सो 2 घंटे हो चुके हैं मेरे को कॉन्टीन्यूसली ड्राइव करते हुए एंड इट हैज़ बिन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. ज़रा से भी थकान नहीं है एंड इट मे बी माई एंथुजियाज्म एज वेल, बट I just have no words to say for the car. Very comfortable, very good to drive, very nimble, very powerful. So after like a good 20-minute break, we are back on the road. लेकिन अब हमारे सामने एक और मेजर दिक्कत आ गई है. वो ये है, हमें जस्ट अभी पता चला that because of road maintenance वगैरह, रोज़ 11 से लेकर 1 बजे तक हाईवेज़ मनाली के बंद होते हैं. So मतलब हाईवे मनाली का शुरू होता है मंडी से. सो बेसिकली अगर आपने 11 बजे से पहले मंडी क्रॉस कर लिया, दैट इज़ गुड. अगर आप 11 बजे से पहले मंडी क्रॉस नहीं करते, देन द इशू इज़ कि आपको 1 बजे तक रोड बिल्कुल क्लोज मिलेगी एंड यू विल हैव टू स्टॉप फॉर 2 hours. सो
अभी हो गए हैं 10:30 ऑलरेडी एंड देयर इज़ नो चांस दैट वी कैन रीच मंडी बाय 11, सो आई थिंक वील हैव टू स्टॉप फॉर अनदर 2 hours. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. सो अभी हमारा जो प्लान है वो यही है कि कोई होटल और समथिंग वील सी and stop for like breakfast or something and spend as much time over there as possible so that you know we could just pass that 2 hours. वो 2 घंटे पार होने के बाद ही हमारा क्योंकि आगे जर्नी शुरू होने वाली है. एंड द थिंग इज़ कि 11 से लेकर 1 बजे से 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, सो रोज़ 4 घंटे ऐसे हाईवे बंद रहता है. सो वी वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस वैसे तो. सो इसीलिए हम 8 बजे चले थे कि हम 11 बजे से पहले मंडी पहुंच जाएंगे, बट ये वाला जो स्टॉपेज आधा घंटा हम रुके रहे ना, उसकी वजह से इशू क्रिएट हो गया. सो एज प्लान्ड हम खाना खाने के लिए एक जगह रुक गए हैं बिकॉज द रोड इज़ नाउ क्लोज्ड फ्रॉम 11 till 1, सो 2 घंटे हमारे पास अब कुछ नहीं है करने को. सो दैट इज़ वाई वाइल वी आर वेटिंग एंड वाइल यू गाइज आर वेटिंग, मैं आपको उस कार के कुछ जो बहुत अच्छे फीचर्स मुझे लगते हैं दैट आई विल शो यू. फॉर एग्जाम्पल दिस कंट्रोल सिस्टम जो हमें इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के लिए मिलता है, इसको यूज़ करते हुए एज यू कैन सी इट एक्चुअली मूव्स एज अ माउस, बट देन इसके अंदर आपको छोटी छोटी हैप्टिक फीडबैक्स मिलती हैं. मतलब एज सून एज आप किसी भी बटन के ऊपर जाओगे ना डिस्प्ले के अंदर, तो वहां पर ये एक हैप्टिक फीडबैक आपको देने वाली है, जो कि ऑब्वियसली ऑन कैमरा आई कैन नॉट शो यू, बट देन while using it is very easy. Also another cool thing is, for example मान लीजिए अब मैं आ गया हूँ मेन मेन्यू पे एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल गो ऑन टू मैप्स, तो यहाँ पर एज यू कैन सी जितने भी बटन है हमारे पास सिर्फ इसी एरिया में है, साइड डिस्प्ले की साइड में, एंड इस साइड पे सिर्फ एक ही बटन है एंड नीचे की साइड कुछ भी नहीं है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, एज यू कैन सी इट कम्स बैक टू द लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है सिलेक्ट करने को. सिमिलरली इफ आई टेक इट ओवर हियर, तो ये यहाँ पर ही अटक जाएगा बिकॉज देयर इज एन ऑप्शन टू सिलेक्ट ओवर हियर. दैट इज वाई इवन वाइल ड्राइविंग आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट easily control it with just the feeling of this touchpad. The second thing that I absolutely love about this car is the speaker system. Mark Levinson speaker system आपको मिलता है इस कार के अंदर, which just sounds absolutely insane. मतलब इस पूरे रास्ते पे obviously I am blasting music the whole way, and जो blissful experience मेरे को इस गाड़ी में मिला है, I don't think that I have heard this good quality of sound system in any other car. One of the best perks of this car. So कुछ around 150-160 kilometers later and 5 hours later, हम 8 बजे शुरू हुए थे. Now the reason इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगा है because क्योंकि वो बीच में 2 घंटे का जैम की वजह से हम रुके हुए थे, एंड देन वो आधा घंटा जैम जो मैंने आपको पहले बताया था, तो अराउंड 1.5-2 घंटे हम रुके हुए थे एंड बाकी टाइम हमने गाड़ी चलाई है. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस व्हाट आई कैन से राइट नाउ आर 2 थिंग्स. Number 1, this is a very comfortable car. I mean 5 घंटे ओवरऑल हो चुके हैं, जिसके अंदर से मुश्किल से हम आधा घंटा बस जब हम खाना खाने के लिए रुके थे तब हम खड़े हुए थे एंड वी मूव्ड अबाउट हियर एंड देयर, बट 4.5 घंटे ऑलमोस्ट मैं गाड़ी के अंदर तब से बैठा ही हुआ हूँ, चाहे गाड़ी चल रही है चाहे मैं वेट कर रहा हूँ. I do not feel any kind of fatigue in the car. I have around अभी भी like हमें कुछ around 500 किलोमीटर गाड़ी अभी भी चलानी है. I feel as though I can still do that. मतलब that's how good this car has been. Suspension, hats off. Very soft suspension. मतलब छोटे मोटे bumps तो ये गाड़ी ऊपर से ऐसे निकलती है जैसे you don't even feel it. बहुत ज़्यादा harsh bumps पे भी you don't fiddle around here and there. You are very well planted. And even after, मतलब I'm not going to lie, we have pushed this car a lot. लेकिन even then it has been very planted. बहुत ज़्यादा सेफ ड्राइव लगी है मुझे इस कार की अभी तक. कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा दैट आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल इन द कार. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस बिफोर एज वेल, बट दैट impression of safety in this car has still not gone, and that impression of confidence has still not gone in the car. ऊपर से that whole experience जो 8 गाड़ियों का इकट्ठे जाने का जो एक्सपीरियंस है, प्लस लाइक टॉकिंग ऑन वॉकी टॉकीज द होल टाइम. दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट, लाइक दिस, जिसके अंदर मतलब एक ड्राइव की तरह, एक कॉन्वॉय की तरह हम जा रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी अगर किसी को कुछ इशू आ रहा होता है, आगे कोई डाइवर्जन होती है, तो वी अलर्ट द अदर्स ऑन द वॉकी टॉकी. कोई रॉन्ग साइड आ रहा होता है, कोई आगे खड्डा आ रहा होता है, कोई स्पीड कैमरा आ रहा होता है, सो वी अलर्ट ईच अदर ऑफ दैट, एंड दैट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अच्छा है. प्लस द म्यूजिक सिस्टम, मतलब एक बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट द म्यूजिक सिस्टम ऑफ दिस कार रियली मैटर्स, क्योंकि स्पेशली अभी मैं गाड़ी में बिल्कुल अकेला हूँ.
and music is the only thing right now जो मतलब is keeping me entertained, and that is why having a good music quality really matters a lot, and this car has completely fulfilled that. कुछ और चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ इस गाड़ी की, तो हाइब्रिड टेरेन आई रियली लाइक इट। वो जो ट्रांजिशन जैसे मैंने आपको बताया नहीं पता चलता है इस गाड़ी के अंदर। जब आप ट्रैफिक में खड़े होते हो इंजन नॉइज बिल्कुल ज़ीरो है, बिकॉज द कार एसेंशियली वर्क्स इन ईवी मोड। तो ईवी मोड के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वेरी सॉफ्ट। क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ 60 नॉट अ बिग डील। क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स तो ऑब्वियसली गाड़ी के अंदर है ही, तो दैट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। बट द मेन थिंग इज that as soon as you actually want to overtake someone, क्योंकि the thing is when you're driving with 8 cars on the road, तो 8 cars में obviously बीच में कोई आ जाता है, कुछ हो जाता है, but if we want to continue that convoy, तो हमें बार बार लोगों को overtake करना पड़ता है, and this car has more than immense power for it. मतलब if I just give you a small context of it, so right now मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो है 60। अब मैं पूरी रेस दूंगा, and that's 100. So even from 60 to 100 was like what 5 seconds. So on demand power है गाड़ी के अंदर, and वो power delivery भी बहुत ज़्यादा smooth है, which is just a fantastic thing to have. Now I absolutely do not want to bore you with the whole trip, क्योंकि एक बार हमने mountains वाला region cross कर लिया तो उसके बाद पूरा रास्ता highway ही था, and that whole experience genuinely with this car was absolutely amazing. Like in the end we ended up driving around 16 hours, जिसके अंदर मतलब it includes stopping in between for like lunch, dinner, etc. And traffic as well. So we ended up driving 16 hours in one day, and obviously 16 hours sitting down does get tiring. तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि the car was absolutely comfortable, मैं 10 घंटे और गाड़ी चला लेता, I won't bore you with everything. Yes, towards the end, last के 3-4 घंटे मेरे लिए थोड़े से uncomfortable हो गए थे, but then again 16 hours is not a small amount of time as well. हाईवे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब हाईवे पे एवरीवन हु वाज इवन ड्राइविंग 3 डिजिट स्पीड्स, उनको भी ओवरटेक करना इन दिस कार वाज अ पीस ऑफ केक। नाइट ड्राइव का जो एक्सपीरियंस था इस कार के अंदर, अमेजिंग। हेडलाइट विजिबिलिटी वाज अमेजिंग, एंड देन ऑब्वियसली विद अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल any trip becomes absolutely fantastic. And now it is a brand new day, all freshened up from yesterday. So it did get tiring at the end, but जो experience मुझे RX 450h के साथ रहा है, I am never gonna forget it. बहुत ज़्यादा मज़ा आया है मुझे. The engine of this car, to the sound quality of this car, to the comfort this car has, and ऊपर से ड्राइविंग ऑलमोस्ट हर एक कंडीशन में, मनाली में पहाड़ों पर, गंदी रोड्स पे, बहुत अच्छी रोड्स पर, सिटी के बीचों बीच, हाईवेज पर, मेरे को हर एक ड्राइविंग प्लेजर मेरे को मिला है इस कार के अंदर, एंड आई हैव गॉट टू थॉरली टेस्ट द कार। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस कार की लगी वो ये है कि ये गाड़ी 1,12,000 किलोमीटर चल चुकी है, बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ये गाड़ी बिल्कुल वैसे चल रही है दैट इट इज ब्रांड न्यू। मतलब दैट इज द वन थिंग अबाउट लेक्सस जो कि आई थिंक नो वन कैन एवर बीट। दीज कार्स आर मेंट टू बी ड्रिवन। मतलब इस गाड़ी को, आई हैव नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि ये गाड़ी अभी सिर्फ 1,12,000 चली हुई है। ये गाड़ी आज से मान लीजिए 4 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर भी अगर चल जाएगी ना, इट विल स्टिल बी जस्ट एज गुड एज न्यू, as long as you keep maintaining the car. And in fact, अगर मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं about Lexus, there is a Lexus car on the road जो अभी भी चल रही है, that has been driven 1 million miles. मतलब 10 लाख माइल्स चल चुकी है वो गाड़ी, यानी कि 16 लाख किलोमीटर चल चुकी है वो गाड़ी, and it is still running till date. That is what Lexus is about, luxury plus reliability, जो कि I think you cannot say for many brands. It has been a wonderful pleasure driving this car, and I loved it to the core, to the fact that मैं इस ट्रिप को कभी नहीं भूलूंगा. But that's all for this video, guys. I really hope you like this video. अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें. Comment down below आपको क्या लगता है about the RX 450h. Share this video as much as you can, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next one.